Hello students, I hope you all will be happy and healthy students. Today we are going to discuss a very prominent, very important term of economics, that is planning. Before we start, we should know about the planning. It is just like a arrangement, students, as we find in our family, that we have income as a resource and we have to fulfill our necessity. So to fulfill our necessity in our limited resource as a income, we have to arrange our necessity at the priority level. We have to fulfill them as a priority level, means we decide which our necessity to be fulfilled first. So likewise we would know about this term planning in India, students, as we have a vast country, students, so we would know what is planning in the sense of India. We want to use resources, time and money in such a way that maximum work can be performed by using these resources in a proper manner. As we have known that we have limited resource, likewise in the country there are some resources and we want that those resources should be fulfilled in a proper manner. So these are resources, time and money to fulfill our necessity. First of all, an outline is made to conduct any family function. So first of all, we have to decide what to do first, which necessity is to be fulfilled first, students. After this, the person or family tries to use resources in the best possible manner. Then we have decided the resources and our goals and our priority. Then we try to use those resources in the best possible manner, students. Just like a person or a family, a nation also wants to fulfill its many objectives by using the resource available in best possible way. Likewise, we have used this way in our family, so it is also used in the big family like our country, students. Planning is a technique in which efforts are made to achieve objectives by distributing favorably the resources and fixing targets on priority basis. So we should know that planning is a technique, it is a way, it is a method in which efforts are made to achieve objectives. We do our work, we do our efforts by distributing favorably the resources. हम अपने साधनों को फेवरेबली, यानी ये सोचते हुए कि सबसे पहले हमें कौन सी हमारी नेसेसिटी को पूरा करना है, उनको प्रायोरिटी पर रखते हुए अपने टारगेट्स को हम फिक्स करते हैं कि पहले हमको ये अचीव करना है, उसके बाद हमको ये अचीव करना है, और हमारे जो रिसोर्सेस हैं, इनकम के जो सोर्स हैं, उनके द्वारा हम इनको पूरा करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किस आइटम पर हमको कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना खर्च करना है, स्टूडेंट्स. Planning has some important factors, and likewise that all our terms has factors, so planning is not an exception. It also has some factors. First, it has well defined definite aims and objectives, so we fulfill its and we have definite goals or objectives to be fulfilled by our resources. Secondly, estimation of available resources is done. Then we estimate our resources. पहले हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को पता लगाते हैं,
उसके बाद हम अपने जो हमारे रिसोर्स हैं, हमारी जो इनकम है, उसको हम अरेंज करते हैं, उसका एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारी इतनी इनकम होगी जो अवेलेबल होगी हमको, तो ये हम काम करते हैं। थर्डली, आफ्टर एस्टिमेशन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन वेरियस टारगेट्स इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि हम एस्टिमेशन कर लें और उसके बाद हमें किस किस आइटम पर, किस किस मद पर हमें कितना अपना पैसा, कितना रिसोर्स हमको एक्सपेंड करना है, ये बात हम निश्चित कर लें। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज बट इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस of achieving certain social objective by using available economic resources, and our government generally it has to fulfill the health facilities, roads, overbridges and employment and other than many areas of the development. So it plan and decide the goals to fulfill them. Important decisions in economic planning are taken by a central authority, और इसके लिए जैसा हम जानते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार हुआ करती है। इस मामले में हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको पहले कौन से अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इसकी जो डिसीजन है वो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी, हमारी सेंट्रल सरकार लेती है, केंद्रीय सरकार। इट डिटरमाइंस मैनेजमेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, और इसके लिए ये तय किया जाता है कि किस प्रकार हम व्यवस्था करेंगे, मैनेज करेंगे, प्लानिंग करेंगे और किस स्पीड में हमको वो काम करना है। यानी हमारे ये लक्ष्य भी होना चाहिए कि इस समय तक हमको ये पूरा कर देना है, इस स्पीड से हमको चलना है। एंड डायरेक्शन, और हमको किस दिशा में काम करना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ये सब डिसाइड किया जाता है अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने से पहले। प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग टारगेट्स। ये हमारी ऐसी टेक्निक है जिसमें अपने हम अवेलेबल रिसोर्सेज से हमारे जो टारगेट्स हैं कि हमको 2 साल में सभी गांव में बिजली भेज देनी है, हमें इंस्टॉल कर देने हैं, और हमको सभी गांव में एक एक सरकारी स्कूल देना है, सभी गांव में एक एक हॉस्पिटल बनना है। इस प्रकार के टारगेट्स हम निर्धारित पहले कर लेते हैं और अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्लान कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं। अ नेशन यूजेस दिस टेक्निक इन अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लाइक फैमिली प्लानिंग। हमारा जो राष्ट्र है, देश है, वो भी इस टेक्निक को यूज़ करता है ताकि डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। जैसे कि फैमिली प्लानिंग, हमको पता करना होता है कि भाई हमारी आगे आने वाली समय में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उस पॉपुलेशन के लिए हमें इतना सड़कों का, इतना हेल्थ फैसिलिटीज़ का, इतना स्कूल्स का हमें आवश्यकता होगी, तो उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होती है। When the technique of planning is used in the development of economy or achieve desired economic objective, it called economic planning। और जब हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, अपनी इस टेक्निक को प्लानिंग में यूज़ करते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम अपने जो हमारे इच्छित इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ये सब हम करते हैं, तो इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय द सोवियत यूनियन। इसकी भी शुरुआत सोवियत यूनियन में सबसे पहले हुई। जो हमारा रूस है, रशिया है, उसने इसे सबसे पहले अडॉप्ट किया और प्लानिंग की कि किस तरीके से इन फ्यूचर हमको प्रायोरिटी के बेस पर किन किन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। सोवियत यूनियन declared central planning in 1928 and the path of economic planning was adopted through 5-year plans। और इनके लिए 1928 में उन्होंने 5 years के प्लान्स बनाए
कि आगे आने वाले 5 ईयर्स प्लान्स में हमको अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव्ड टू बी रिवॉल्यूशन इन इटसेल्फ, चूँकि ये नई एक व्यवस्था थी तो पहली ही 5 ईयर प्लान में जो परिणाम सामने आए उन्होंने साबित कर दिया कि ये तो अपने आप में एक क्रांति है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया आल्सो जॉइंड द लिस्ट ऑफ नेशंस who adopted the model of economic planning at national level to achieve rapid economic development। भारत ने भी आज़ादी के बाद उन देशों से शिक्षा ली, सबक लिया, सीखा कि किन देशों ने अपनी 5 ईयर्स की प्लानिंग के द्वारा आगे डेवलपमेंट किया है। तो भारत ने भी अपने गोल्स निर्धारित कर कर उसी राह पर चलने का मन बना लिया। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ग्रेटली। ये जो विचार है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का, इसने प्रभावित किया हमारे भारतीय विद्वानों को, और जो हमारे विद्वान थे, जो समझदार लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा इस विचार ने प्रभावित किया। मैनी स्कॉलर्स प्रेजेंटेड सेवरल सजेशंस एंड सपोर्टेड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1930 टू 1940। और ये जो पीरियड था हमारा, ये आज़ादी से पहले का था, जिसमें बहुत से हमारे विद्वान थे जिन्होंने उस कॉन्टेम्प्रेरी गवर्नमेंट को ये सजेशन दिए कि हम इस प्रकार की प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं और देश को धीरे धीरे तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। द फर्स्ट एफर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज मेड बाई श्री एम विश्वेश्वरैया इन 1930 में, और इसने जो मूर्त रूप लिया वो श्री एम विश्वेश्वरैया के लीडरशिप में लिया। सबसे पहले जो प्रयास हुए भारत में वो इनके द्वारा किए गए, जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एक विचार है वो सामने आया, और ये बात है 1934 की। He presented a program in his book Planned Economy of India for Planned Development in India। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे प्लान करें, यानी अपने रिसोर्सेज का कैसे पता लगाएं जो हमारे अवेलेबल रिसोर्स हैं, और किस प्रकार से भारत का एक सुनियोजित विकास हो, ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड द प्लानिंग कमीशन अंडर ए रेजोल्यूशन इन मार्च 1950। और आज़ादी के बाद भारत ने 1950 में एक विभाग जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है उसका स्थापना की, और मार्च 1950 में इसने अपना काम करना शुरू किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू इवेल्युएट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड मेक प्लान्स फॉर द इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो इन्होंने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव का पता लगाया कि कौन कौन से हमें अपने लक्ष्यों की पूर्ति आगे आने वाली 5 ईयर्स में करनी है। इस कमीशन ने ये सबसे पहले तय किया, और फिर उनके बाद उन्होंने अपने इवेल्युएट किए रिसोर्सेज को। स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि देश की भी जो इनकम होती है कैसे टैक्सेस के माध्यम से और तरह के जो भी उनको लाभ होते हैं, संपत्तियां होती हैं बहुत सारे, तो उन सब से जो इनकम होती है उन सब का उन्होंने इवेल्युएट किया अपने रिसोर्सेज का, और प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम इफ़ेक्टिव प्लानिंग के द्वारा और बैलेंस्ड होकर अपने इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकेंगे। बैलेंस का मतलब ये ध्यान रखें कि कहाँ हमको कितना खर्च करना है, उस हिसाब से हम बैलेंस करें। ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा हो जाए और कहीं नहीं मिल पाए तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बैलेंस्ड होकर हमको ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करना था। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमीशन was to fix various objects on priority basis and suggest the allotment of resources। और दूसरा जो एक प्रमुख
कार्य था इस कमीशन का वो ये था कि सबसे पहले हम अपने जो विभिन्न हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिक्स कर लें, उनको एक प्रायोरिटी दें, यानी अधिमान दें उनको कि किस प्रकार से पहले हमें कौन से अपने जो कार्य हैं वो करने हैं और उसके बाद फिर कौन से करने हैं, उनको एक क्रम देना है, ऑर्डर देना है। एंड सजेस्ट द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और फिर ये सजेस्ट करना था कि हमें इस मद पर इतना हमको खर्च करना है। प्लानिंग कमीशन वॉज एन एडवाइजरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे और इंस्टीट्यूशन होते हैं, जुडिशियरी है हमारा, जैसे हमारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं, ऐसा ही हमारा प्लानिंग कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही स्थापना हुई थी। इन अगस्त 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और 1952 में भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय जो आपका डेवलपमेंट काउंसिल है वो बनाई। द मेन objective behind its establishment was to include states and union territories in planning and execution and decentralization of planning process। इसके लिए उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को, लक्ष्यों को तय किया और इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट वॉज टू इंक्लूड किस तरीके से राज्यों में उनको एस्टेब्लिश करना था तमाम गोलों को, एंड यूनियन टेरिटरीज, और जैसा कि भारत विशाल देश है, भारत की सीमाओं से बाहर भी हमारी कुछ टेरिटरीज हैं, उन सब पर भी ध्यान देना था, उनकी भी प्लानिंग होनी थी, उनकी भी डेवलपमेंट होना था, और इसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हमें उन योजनाओं का करना था, ये सब हमने किया। और डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का हुआ। इस प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जगह जगह पूरे सभी को अधिकार दिए गए, सभी का ध्यान रखा गया और जो प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया स्टूडेंट्स। सो आज इतना ही, ओके बाय।